तो देखिए पहले भी हो सकता है बहुत लोगों को पता है, इट्स नॉट ए बिग डील एज सच, ठीक है। सो नॉर्मली इफ विल टॉक अबाउट पेपर 1, ठीक है, पेपर 1. So in paper 1, how many questions are there? Like first ancient, that is part A. और पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज मैप, देन सेकंड ए, बी एंड सी, थर्ड अगेन ए, बी and C, fourth A, B and C. This is the part A. Then it comes to part medieval. That's called as part B. Now question number 5th. So it's A, B, C, D and E. Then 6 A, B, C. C-side वाली फीलिंग आ रही है. A, ये पेपर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. एंड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सपोज टू राइट? यू नीड टू राइट total 5 questions, but out of these 5 questions there are 2 questions which are compulsory. 2 questions are compulsory. And what are these 2 questions which are compulsory? First and so this one is compulsory and this one is compulsory. So first, the first question of every segment is compulsory. So you have to write it. You can't take the excuse. So basically map वाला question आपको करना है और map के साथ साथ आपको when it comes to the question number 5, these 2 questions are compulsory. अच्छा, ये बहुत unusual नहीं होगा अगर आने वाले टाइम पे UPSC पैटर्न चेंज भी कर दे. So far the pattern which was being followed, as per that you need to write the first and fifth as compulsorily, and then from the rest of the questions you need to select how many questions are remaining. So there are remaining questions are 3. So from rest of the questions you need to select 3, but then there is a compulsion that you can't select all the 3 from one segment. You have to select at least one question from one segment and rest 2 you can select from anywhere. So agar suppose you have been writing this question map, and then of course you have been attempting map and this question you have attempted, so you can't write all the questions from either this section or this section. So you have to select either at least one from every segment, and that's how you are going to write the paper. Okay. Now one more thing, once I have started discussing these kind of things, let's talk about that. When it comes to compulsory questions, so do you literally think that they are made compulsory without any reason, or there must be some reason because of what it is made compulsory? There are some reasons because of what these are made compulsory. And what is the reason? The reason is very simple. When it comes to evaluation, the first question which is being evaluated is the compulsory question. The first evaluated questions are compulsory questions, and that's how you can't take it lightly. And that makes the situation very complicated also. This makes the situation very complicated. Why? Because sometimes what happens, you are not very comfortable in all the 5 questions. Here there is a map, and you all know that if you are knowing around 15 sites, that is your good luck. 15-16 sites, तो वो ठीक है आपके लिए. 16 साइड तक अगर आपको पता है, अगर 17 पता है तो फिर तो आप टॉप करने वाले हैं, फिर तो आप टॉपर हो जाएंगे 17 अगर पता है तो. बट मिनिमम 15 पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे एटलीस्ट द टारगेट शुड बी 15, और अगर ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो ठीक, उसमें आ जाते 36-37 तक आ भी जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है. बट 15-16 साइड्स तो टारगेट लेके चलना होता है. तो यहाँ पे तो हमारे पास बहुत चॉइसेस नहीं होते हैं. चॉइसेस इसलिए क्योंकि इधर द साइट्स एज फार एज द साइट्स आर कंसर्न, इधर यू नो इट और यू डू नॉट नो इट. अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो थोड़ी बकवाजी कर दीजिए, ठीक है. कोई भी एक नियरेस्ट साइट लिख के
के ऊपर राइट द डिस्क्रिप्शन, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. व्हेन इट कम्स टू दिस सेगमेंट लाइक द 5 ABCDE, यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, लाइक समटाइम्स पीपल गो फॉर ग्रुपिंग्स. They do not prepare the whole syllabus. Like they go with a pre-frame, like pre-framed mind, pre-planned mind, framework. And what is that? That they always believe that they are going to write like 3 questions from medieval and 2 from ancient, or let's say 3 from ancient and 2 from medieval. So always keep in mind one thing: when it comes to the compulsory questions are like dispersed throughout the syllabus. So ऐसा नहीं होता कि there is one segment from where the compulsory questions are being asked. And the second problem in the compulsory question is that these are short questions. So since they are short questions, and that's how in history there are great number of possibilities of framing the new questions also, and they do so. In every year's question you will find that as far as the compulsory questions are there, at least 1 or 2 questions are coming as such which are literally very complicated. Maybe you haven't gone through it, और कई बार होता है कि पढ़ा है तो बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम, जैसे इस बार के पेपर में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि मॉडर्न वाले पेपर में कि हमको उसमें क्रिटिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस लाइक दे हैड बीन नोइंग जस्ट वन पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट इन ए कंडीशन टू गो फॉर ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन. वो भी है क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में ही लिखा होता है कि यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट और यू हैव टू डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. But then how particular UPSC is about this, like that also I do not know. Why? Because sometimes they are like writing at the when they are writing the heading of the question, they are writing that you need to evaluate critically, and then when they are asking the questions, in the question also the another tell word has been given. This also I have noticed. So I think that they are not taking it very seriously. But yes, this I know that when it comes to the compulsory questions are compulsory for this reason, because they are being evaluated first, and in fact on the basis of these questions normally the evaluator frame their mind whether you are a good student, you are a bad student. भाई एक साल क्या किया है, कल्टी मारा है, पढ़ाई की है या कुछ और किया है. तो दे ट्राई टू फ्रेम दिस काइंड ऑफ माइंड. उसको अगर समझ में आता है कि नहीं बच्चा अच्छा है तो फिर आपको उसका सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, ठीक है. दैट पर्सन रिमेन्स बिट लीनियंट वाइल इवैल्यूएटिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. बट अगर उसने आपने ज़्यादा गोलीबाजी कर दी है, ठीक है, मतलब यू डू नॉट हैव द कंटेंट बट देन यू हैव रिटन द आंसर, so that is not going in your favor. So at least learn one thing very carefully. I'm not saying after that you'll be having immense information and you will be able to whatsoever question is being asked you'll be able to answer. नहीं यार, tricky होते हैं questions, ठीक है, और फंसेंगे आप, 1 या 2 question में फंसते हैं. हाँ, इतना है the kind of syllabus, the way I have covered the syllabus, this I can assure you that there won't be any such question where you are not having any idea. मतलब you are not blank with the ideas. Maybe you are having the ideas, but then you are just getting only 50 words to write. So there, instead of repeating the ideas, instead of making it bekar and bekar, ठीक है, you just write whatever the content you know, ठीक है. There's no need to write to 150 words or something like that. Don't try for that. जितना है आपको 75 words में आपका content खत्म हो रहा है, write it in 75 words, finish it. So since it is not going to happen, and that's why here you have to be very cautious. एंड होता है ना, जब कहते हैं कि सारी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर लो तो बात बन जाती है. अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं मिलता है. इफ विल थिंक लिटिल बिट विल फाइंड सम रेलेवेंट कंटेंट टू राइट. और इतनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद इंसानों को थोड़ा थोड़ा कनेक्शन चीज़ों की मिल जाती है. सो यू कांट लीव द क्वेश्चन फर्स्ट थिंग, एंड यू हैव टू ट्राई टू राइट द बेस्ट आंसर्स. इन फैक्ट बहुत लोग क्या करते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन को पीछे जाके लिखते हैं. नेवर डू दिस मिस्टेक एवर इन योर लाइफ. If the compulsory questions are being evaluated first, and I'm telling you that what is the weightage of this compulsory questions, so I think you all should understand कि you should write first the compulsory question. थोड़ा वक्त दीजिए compulsory question में. ऐसा नहीं कि बस जो भी कंटेंट है उठा के लिख दिए. थोड़ा वक्त दे के लिखना है, थोड़ा सा फ्रेम करके लिखना है. तो compulsory questions को बहुत सीरियसली लीजिए. और बाकी के क्वेश्चंस जो है, ठीक है, अगर मैंने कहा कि बाकी के क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, और ऐसा नहीं कि दे आर नॉट नोइंग दैट यू हैव जस्ट स्टडीड दिस सब्जेक्ट फॉर लास्ट 1 year, so they just try to understand your conceptual clarity, and this is the reason because of what they have given this word critically analysis in the beginning only. Why? Because if they are writing, they are asking you to analyze anything critically, so they just try to understand whether you have you have
a sort of holistic understanding of the subject or not, वो पता चल जाता है वहाँ से, और चल जाता है वो इवैल्यूएट जब आप खुद भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है. So this is the reason because of what, be attentive for these questions and write it very, like let's say, just go for a process of thinking and then only write this paper. So this is the structure of paper 1 and that's how you need to write it. Map questions मैं हमेशा suggest करता हूँ कि what is the best way of writing the map question? You identify the name of the sites. ठीक है, और साइट्स के नेम आइडेंटिफाई करके ना लिख के छोड़ दो उसको डिस्क्रिप्शन मत लिखो, डोंट राइट द डिस्क्रिप्शन, यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द साइट्स एंड गो पास ऑन. क्यों? क्योंकि जब आप मैप्स के साइट्स के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो क्या होता है कि उसके लिए कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती है, वो फैक्ट्स है, अगर आ रहा है तो ठीक है लिख दोगे, नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं, देयर इज नॉट समथिंग लाइक दैट यू विल बी एबल टू थिंक एंड देन फ्रेम एंड देन यू विल बी एबल टू राइट. ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला. तो मैप के क्वेश्चंस के आप साइट लिख के आगे चले जाओ, छोड़ दो, ठीक है, एंड देन राइट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So that's how you are done with 1.5 question and then select carefully. Now one more thing, don't commit this mistake कि अगर आपको लगता है कि ये चॉइस है आपके पास, एक इसमें से लिखा, एक इसमें से लिखा और एक इसमें से लिखा, तो ऐसा भी मत कर दीजिएगा कि जो है जहाँ कन्वीनियंस दिखा, बिल्कुल कन्वीनियंस. यूपीएससी बहुत स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, 2 तो बहुत अच्छे पूछेगी, ठीक है, और तीसरे में फंसाती है आपको. दैट्स अ जनरल पैटर्न ऑफ यूपीएससी. लुक एट द पेपर ऑफ एनी ईयर, उठा के देख लो, उसमें 2 ऐसा होगा कि 2 में हर कोई कंफर्टेबल होगा, हर कोई मतलब ठीक है अपने अपने कंटेंट के हिसाब से ये पता होगा कि यस आई विल बी एबल टू राइट इट. तीसरे में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई स्मार्ट एक्ट किया कि जो है 2 इसमें से लिख दिया, एक इसमें से निकाल, गजब आंसर लिखा, बहुत बढ़िया, ठीक है. ऐसा भी मत करके आना. आपको जिस सेट को चुना, लाइक वॉट एवर द क्वेश्चंस यू हैव पिक्ड, लाइक यू नीड टू राइट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. सो दैट्स आल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, when it comes to paper 2, so in paper 2 this is again question number 1. Question number 1 में same pattern is there, A, B, C, D and E, and the same thing is being repeated here also, but only it is world history. This is world history. Same suggestions are there here also. These are compulsory questions, this is compulsory, and 1 and 5th are compulsory. So these 2 are compulsory, you always remember. अब ऐसा मैंने बोल दिया और यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया तो बाद में मुझे आके ब्लेम मत करना, मैं तो अभी भी बोलूँगा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना. When it comes to paper 1, ancient and medieval, now this is also there is also one rumor in the market. Like, what is this rumor in the market? The rumor is this, that if you are selecting so many 3 questions from ancient, you are getting good marks. In paper 2, if you are selecting 3 questions from the world, you are getting good marks. That's a very popular rumor in the UPSC market. And at one point of time, it was so much popular, right, that the people went for a survey. And this rumor was there that everybody who has written 3 questions from world history, they scored very good. And the person who tried 3 questions from the modern India, फिसड़ दी. ये भी कहा. तो एक ग्रुप है टेलीग्राम में, they did a survey and mostly like the people from that group are writing means. तो उन लोगों ने लिखा, ठीक है, उन लोगों ने तब था, अब नहीं है एक्टिव. तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये सर्वे किया और सर्वे में ऐसा कुछ नहीं निकल के आया कि जो है पीपल दोज हु हैव अटेम्प्टेड 3 questions from world they scored very good. So these are rumors. The only criteria of selecting the question is whether you are comfortable in writing them or not. बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि medieval से they are going to always select 3. Why? Because in medieval they always feel that comfort. medieval के क्वेश्चंस अभी तक पिछले 2 साल के पहले तक क्या था, बहुत ट्विस्टेड नहीं आते थे. ये 2 साल से उन लोगों ने अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया medieval के क्वेश्चंस के साथ. 2 साल पहले तो बस मतलब जाके सिर्फ वॉमिट करना है, इसमें पढ़ के आए उधर वॉमिट करना है जाके, ठीक है, ऐसा होता. लेकिन अब नहीं है, medieval में एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं, they have been doing it. तो सेम इन द वर्ल्ड ऑल्सो, लाइक इन द पेपर 2 ऑल्सो. आपको जहाँ कंफर्ट मिलता है, आपको जब तक आपको मैंने कहा ना कि जब भी व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग दिस सेट, दैट्स लिटरली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है. ऑफ कोर्स दे आर जस्ट डेस्परेटली मेकिंग 1 question स्लाइटली टफ एंड 2 questions स्लाइटली ईजी. ईजी भी मतलब ठीक है, वो आपको आता है नहीं आता वो सब्जेक्टिव है, हाँ, बट जिसने ढंग से तैयारी की है उसको आता है, ये बात सही है. तो आपको जहाँ अपना कंफर्ट है कि आप वो, क्योंकि हर यूनिट में आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 में तो यू मस्ट बी फीलिंग कंफर्ट, ठीक है, 3rd में जाके आपको प्रॉब्लम होगी. द पॉइंट इज दैट
where you feel that even the third question you can write in a good way. So the moment you feel कि यहाँ तो third question मैं लिख दूंगा अच्छे से, उसको select करिए, उसको लिखिए. You can classify the tail words in two categories. ठीक है? And what are these two categories? There's one category is category 1. So I'm just writing category 1. Elaborate. Elucidate. Explain. और क्या है? कैटेगरी 2 में कैटेगरी 2 क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज. हाँ बताओ. कमेंट करके भी होता है. वो बाद में आते हैं. ठीक है. डिस्कस, डिस्कस, एग्जामिन, इवैल्यूएट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज. दीज आर सर्टेन टर्म्स. ठीक है. कुछ वर्ड्स मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जान के छोड़ रहा हूँ. ठीक है. ये 2 डायमेंशंस है जिसमें एग्जामिन लिखा है मैंने. क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन दोनों होते हैं. एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज दोनों पूछते हैं. ठीक है. सो दीज आर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ द टेल वर्ड्स. Now you have studied history a little bit. Now you all know that in history it's not necessary that any particular topic is having just one dimension. The topic may have multiple dimensions. Possibility is there. तो जैसे बाकी जगह में क्या होता है, प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं. ठीक है. या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं आप. हिस्ट्री में जरूरी नहीं कि देयर इज नथिंग पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव. There is definitely not something pros and something cons, and this is the reason because of what it's not necessary that everything is having just one dimension. ठीक है. So what are the possibilities in this subject what we have been studying in history? So either there is one dimension or more than one dimension. यही 2 possibilities है. तो जब basically वो लोग पूछ रहे हैं elaborate, elucidate, explain, discuss, these kind of terms are there. In that case, what do you understand? कि actually the evaluator or the person who has made the question is asking for just one dimension, the dimension which is given in the question. ठीक है. इसका साफ साफ मतलब है कि they have been asking for only the dimension. ठीक है. The dimension given in the question. Given in the question. Simple. No complications at all. अब यहाँ पे 2 possibilities है. Either this particular topic is having just one dimension, there are no other dimensions. So mostly you can find these kind of words only in those areas. ठीक है. These kind of words you can find only in those topics where there's just one dimension. Mostly, I'm not saying always. So if the topic is having just one dimension, there is no complication at all. ठीक है. So in these kind of topics, ultimately the introduction, the dimension which is being written, and whatsoever the content that you need to write, and of course the conclusion is coming. But problem is then when this question is having more than one dimension, but then you have been asked only it's a question which can be critically analyzed, but then the statement, the tail word is saying elaborate, elucidate. अगर ये कह रही, फिर क्या करेंगे? फिर आपको क्या करना है? In that case you'll be writing this dimension only. ठीक है. Which is being asked in the question. Simple. And then when you'll be writing the conclusion, there will be conveying this idea that there are some other dimensions in which it can be studied. So there's this interpretation, one more interpretation. Yeah, but that's how we can conclude it. So in the conclusion only you are going to tell them, yes, there are other possibilities also to interpret this particular thing. That's how you are going to study. Clear है? कोई doubt है? पूछ लो. One dimension, okay, such as
सॉरी How Buddhist literature is better than? वो है पेपर किसी के पास, उसी में से निकल जाएगा क्वेश्चन. ऐसा भी हो सकता है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कुछ और एक्सटेंडेड There are several such questions which are having just one dimension, such as इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द हाँ वो भी है इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ, वहाँ पे भी तो थोड़े डायमेंशंस हो गए. बिकॉज अगर एक इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन सच एज द इकोनॉमिक कॉज, हाँ यही अच्छा एग्जांपल दिया आपने, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. सो इसके तो दूसरे डायमेंशंस हैं, ठीक है. सो यहाँ पे तो आपको कंक्लूजन में जाना पड़ेगा. अब जैसे सच एज लाइक राइट द फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट और व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. नाउ दिस इज हैविंग जस्ट वन डायमेंशन ऑफ कोर्स. अब एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के बारे में जब जाते हैं तो वो फिर डिबेट बन जाती है, ठीक है. लेकिन अगर उसने पूछा कि डिस्कस द कोर फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट, देयर इज नो डिबेट अबाउट द फीचर्स ऑफ द सेटलमेंट. व्हेन दे आर आस्किंग द इम्पैक्ट्स देन इट मे बी डिबेटेबल. Classically, Gupta is called as classical. वो तो डिबेट है, फिर वो तो डिबेट है. Classically, क्लासिकल एज में भी तो परसेप्शन है ना, ऐसा थोड़ी कि हर कोई नहीं मानते इसको. तो जहाँ पे सिंपल जो है कोर फीचर्स पूछा गया, ऐसी चीज़ें पूछी गई, देयर जस्ट वन, देयर आर सेवरल लाइक टॉपिक्स यू कैन फाइंड. बट जैसे कि अभी लाइक सी वाज डिस्कसिंग अबाउट द सॉरी इकोनॉमिक रीजंस वर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इलिसिडेट और लेट्स से इलैबोरेट, अगर ये पूछा या डिस्कस पूछ दिया तो फिर उस केस में आपको पता है कि नहीं दूसरे रीजंस भी हैं. In that case, towards the end of the answer, in the conclusion, you'll be writing कि there are some other reasons also listed for it. But वो conclusion में लिखेंगे, ठीक है. तो ये फर्क है. जब ये सारे questions आए तो सिंपल, ज़्यादातर question मैंने कहा कि वो straight forward होंगे. They will be straight forward. वैसे हम लोगों ने प्रीफर किया तो फिर जो कंक्लूजन का वो जो फीचर है वो तो बड़ा हो जाएगा. नहीं बहुत बड़ा नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है, आपको लिखना नहीं उसके बारे में. जैसे अगर मान लो वही क्वेश्चन देते हैं कि वेदर द ओनली इकोनॉमिक रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो यू हैव जस्ट गिवन द आंसर एंड you have in the body part you have written about the navigation act, stamp act and all these acts. ठीक है. आप ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि like the progressive and the neo progressive historians do suggest the economic causes primarily. ठीक है. जब आप conclusion लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? There are several other group of scholars, those who are not convinced with this idea, such as the neo-conservatives, the ideological historians. They do not agree on this. They suggest some other responsible reasons as well for the American Revolution, such as constitutional deadlock, ठीक है, or the constitutional conflict, political conflict, the ideological reasons and others. But maybe it is quite possible that the other reasons also might have played very important role in American Revolution, but that does not mean that the economic causes can be ignored. हो गया खत्म आंसर. Yes, yes. क्लियर है. जब हम दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे आपसे वो चीख के कह रहे हैं कि भाई बताओ कितने डायमेंशंस. ठीक है. अब अगेन एज कंपेयर टू अदर पेपर्स, हियर यू डू नॉट फाइंड जस्ट वन डायमेंशन. ठीक है. सॉरी, टू डायमेंशंस. सो मे बी द क्वेश्चन इज, ठीक है, द क्वेश्चन इज the question is asking for the critical analysis, evaluate, analyze, critically analyze. It means that this question is having more than one dimension, and in fact you need to write. It's possible that you are not knowing of the other dimension. ऐसा भी होता है, क्योंकि कई बार हम उस डोमेन पे या उतना अंदर जा नहीं पाते, and that's the reason because of what sometimes we are lacking the dimensions. But इतना तय है, this I can say confirmly that the way we have covered, if there is another dimension, at least you are knowing of it. ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि उसका कोई दूसरा डायमेंशन है भी या नहीं है. आपको पता है कि है दूसरा डायमेंशन या तीसरा डायमेंशन. तो जब यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स हियर यू विल बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन एंड द मोमेंट यू कम टू द बॉडी पार्ट, सो यू हैव टू अरेंज योर आइडियाज, इन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है. You are not supposed to mix up the ideas, because if you are mixing the ideas, in that case your structure of the answer is very bad. आपको क्या करना है? आपको आइडिया नंबर 1 एक आइडियाज इधर से लिख देना, आइडिया नंबर 2 अलग से लाइक अरेंज होना चाहिए, और 3 मान लीजिए 3 डायमेंशन, सो यू हैव जस्ट रिटन द 3 डायमेंशन एंड देन इट कम्स टू कंक्लूजन.
And mind you, when you have been concluding specifically the debates in history, never ever give a kind of conclusive remark. हाँ यही था. You can't write in this way. You can't write in this way. This is like the real thing. You will be writing that there's much debate among his scholars about the nature, about the causes and all these things. So we can't say anything confirmedly. That's it. So these are two simple sort of thing what you need to write or that you need to understand. अब इसके बाद कुछ और टेल वर्ड्स होते हैं. टेल वर्ड्स नहीं, ये लोग बिगिनिंग वर्ड्स होते हैं खासकर. एक तो टेल वर्ड में एक मैंने छोड़ा था जिसको कहते हैं हम कमेंट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. कमेंट. इन कमेंट you need to change the structure of the answer. ठीक है. Comment, there is a statement or there is a statement or let's say question which has been given. So first of all, whatsoever statement of the question you have been given, try to explain it properly. Try to explain it properly, that what exactly it is. So maybe you can start the explanation from the intro only. ठीक है. इंट्रो में ही आपने एक्सप्लेनेशन शुरू किया एंड देन यू कंटिन्यूड फॉर सम मोर टाइम. आपने एक्सप्लेन कर दिया एंड देन यू हैव गिवन एन एनालिसिस. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंज्यूमिंग गुड टाइम, गुड like sort of like good space of your answer, but you have been just explaining the content. और उस पर जब कमेंट करें इट्स बेसिकली एनालिसिस, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज कॉन्स जो भी आता है उसको देंगे आप. But explanation remains an important content. You can't go directly to the analysis. In this question, you can directly go to the analysis. Sir, regarding keywords like critically analyze, critically examine, there is one major perception that we have to physically discuss the negative impacts. कहाँ पे? वही मैंने कहा हिस्ट्री में what is positive and what is negative. You just define. We have to discuss both positive and negative. Yes. मतलब क्या है हिस्ट्री में, किसको पॉजिटिव मानते और किसको नहीं. मैंने ये कहा कि उसके कई डायमेंशंस हो सकते हैं. देयर इज नथिंग पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव. मैंने शुरू में ही कहा कि बाकी पेपर्स में सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रोज कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे तरीके से देखते हैं चीज़ें. हिस्ट्री में देयर इज नथिंग पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव. हिस्ट्री में देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस in which the subject or the topic is being studied. So you just need to write about the various dimensions. That's it. आपको ये बताना है कि the same thing is being studied by different scholars very differently, and that's why there are so many dimensions in this particular answer. In the conclusion, yes, in the conclusion, you try to, no, you are not supposed to conclude it. You are supposed to end it with a different note. Maybe you can link it with the future. Maybe you can link it with the next developments. Got it? आप उसको अगले किसी डेवलपमेंट से लिंक कर दीजिए. एंसेंस है, किसी बड़े चेंज से लिंक कर दीजिए कि ये इसकी वजह से ये हो रहा है, या उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बन रहा है. ठीक है. अगर आपको पॉसिबिलिटी मिलती है, लाइक यू आर फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट इट विद बेसिकली द लाइक करंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, बहुत मौके मिलते हैं. लाइक देयर आर सेवरल सच अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन लिटरली लिंक देम विद द करंट, specifically when there is a question on the status of women or all these kind of questions. Society based, any question can be linked with this. Economy based question could be linked with the current. तो आप उसको करंट के किसी के साथ लिंक कर दीजिए. अगर कोई रीसेंट डिस्कवरी है, एक्सकेवेशंस है, आपको पता है उसके बारे में, कोई रीसेंट कंट्रोवर्सी है उसके बारे में पता है, उससे खत्म करो आंसर्स को. तो इफ यू आर एबल टू लिंक इट विद एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली डू. ठीक है. नहीं. So it's नहीं. Basically, if it is saying कि critically analyze the status of women, so there you will be talking about one perception that condition was good, and one perception कि condition was bad, and then how you are going to conclude it. Actually, there is no. It's very subjective to talk about the status of women in terms of good or bad. In every like society, women kept on enjoying certain rights, and at the same time some subjugation was also there. That's how you are just going to conclude. खत्म हो गई बात. आपने एक मीडियोकर कंक्लूजन दे दिया. तो कमेंट में आपको समझ में आया. और इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट डू यू थिंक, हाउ फार डू यू सब्सक्राइब द व्यू, इज इट करेक्ट टू से.
डू यू अग्री। तो इसमें आप लोग में से बहुत मेजॉरिटी कंफ्यूज हो जाते कि वो इवैल्यूएटर मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। और वो कई बार बहुत टेंशन में मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर वो मुझे पूछ रहा है सर कि क्या करना है। वो भाई आपसे नहीं पूछ रहा है, वो आपसे नहीं पूछ रहा, वो मुझसे भी नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि हाउ फार डू यू सब्सक्राइब द व्यू, व्हाट डू यू थिंक, डू यू अग्री। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने व्यूज लिखने, पता नहीं ये कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हो गया कि उसमें लोगों को लगता है कि लास्ट में कंक्लूड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके करूंगा कि देखो ये है। तो मैं बोलता हूँ कि फिर लास्ट में ये भी लिखा देना कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सो एंड सो who is me writing this answer is giving this, like in history we do not contribute anything, हम तो नहीं करते कम से कम। तो हम नहीं करते तो हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना। जब आपसे पूछते हैं हाउ फार, तो इस बारे में भी नहीं कंफ्यूज होना है कि कंक्लूजन में आपको देना है कि 50% और 70% आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, 30% है डिसएग्री। आप हंस रहे हैं, लोग पूछते हैं ऐसे सवाल, क्या बताना है उसको, तो मतलब बता देना कि 80% तक अग्री करे, 20% वैरी करे उससे, हाँ, या फिर पूरे 100%। ऐसा थोड़ी हो सकता है जब आप इतना परेशान हो रहे हैं। मतलब हाउ फार इसका मतलब बताना है कि 4 किलोमीटर तक जो है हम वो है अग्री कर रहे हैं, आखिरी के आखिरी वाले किलोमीटर पे हम डिसएग्री कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं होता। हाउ फार डू एग्री का मतलब ये नहीं कि वी हैव टू गिव इट इन ए नंबर। हाउ फार मतलब ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द डायमेंशन, इंक्लिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज टुवर्ड्स वन साइड। जैसे सपोज आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, लेट्स से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सो देन इट इज आस्किंग कि हाउ फार डू यू अग्री। सो ऑफ कोर्स आवर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स व्हाट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि यस इंडिया वाज डी इंडस्ट्रियलाइज्ड। बट देन डज इट मीन कि द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर प्रूविंग दैट देयर वाज नो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैड बीन रिजेक्टेड और हैव बीन रिजेक्टेड? नो, दे आर स्टिल देयर ना। दैट्स व्हाई वी हैव बीन स्टडीइंग। जैसे इस बार मॉडल में आर्टिजन्स का डिक्लाइन क्या था कि इनएविटेबल था। हाँ, तो उसमें जो इंग्लिश कंट्रीब्यूशन आया उसके बिना भी होता ही होता। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होता। तो कंक्लूजन में आप बताएंगे कि हाँ इसके चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। आप ये नहीं बताएंगे कि दिस इज हाउ आई अग्री विद दिस और डिसएग्री विद दिस। यू डोंट नीड टू राइट आई, वी, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने, जीरो यूज होना चाहिए उसका। दैट इज ओनली रिजर्व फॉर सलमान खान। आप नहीं लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। और ऐसे भी कहीं पे ऊपर भी आंसर में कभी आई वी वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वी थिंक लाइक दिस, आई थिंक लाइक दिस, ठीक है, नहीं। तो अवॉइड दीज वर्ड्स। तो वेन एवर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर, सो डोंट बॉदर। वही है, क्रिटिकली एनालिसिस है वो, और कुछ नहीं है। जैसे जीएस में पूछते हैं तो वो भी सेम ही है। जीएस में आंसर लिखने का तरीका एकदम अलग होता है, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट। जीएस में क्या होता है, जीएस में देखो, जीएस में एक्चुअली इट्स नॉट हिस्ट्री विच इज बीइंग स्टडीड, इट्स मोर जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में है तो उतनी इन डेप्थ नहीं चाहिए होती है उसमें। तो वहाँ पे आप प्रोज कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव की तरह वहाँ पे लिख सकते हो थोड़े बहुत, ठीक है। और वहाँ पे भी अपने सजेशंस नहीं देने। जैसे जीएस के बाकी क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड, बच्चे इतना सीख गए हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे ठीक है ना भाई। जीएस में आप बताते हो कि सर ये देखो टेंशन चल रही है इधर और इसका क्या सोल्यूशन होगा। हिस्ट्री में हम सोल्यूशन देने वाले का, पास्ट में जाके हम ठीक थोड़ी करेंगे उसको। कभी कभी है ना हमारे खुद के व्यूज आ जाते हैं, मतलब मॉडल डिक्लाइन कैसे हुए, हमारा दिमाग चलता है, खुद के कुछ न्यू आइडियाज आते हैं। नहीं, न्यू आइडियाज नहीं लिखने हैं सर, क्योंकि हर एक का हिस्ट्री का कुछ होगा नहीं। तो आप लिखे ना सिर्फ, यू जस्ट राइट द आइडियाज ना, यू डोंट राइट द नेम ऑफ द हिस्टोरियंस। नो इशूज, नो इशूज। आप इतने हिस्टोरियंस नहीं याद कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपको किसी के आइडियाज याद है, हिस्टोरियन के नाम आपको नहीं याद आ रहा है, तो यू राइट ना एज पर वन हिस्टोरियन अकॉर्डिंग टू लाइक फ्यू स्कॉलर्स, गो अहेड। तो कंटेंट, यू द फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज द कंटेंट। कंटेंट मतलब दैट आर्ग्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट। Now this is secondary, that who has given this argument, that is secondary. So that's why, and you don't need to write your own argument. वो बाद में, बहुत बाद में, 30 साल के बाद अपने आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करो। अभी क्लैरिटी है इसको लेके? और कोई डाउट है, कोई टेल वर्ड छूट गया है तो पूछ लो। सर जो कमेंट को जो बताएं तो इंट्रो में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, उसका इंट्रो थोड़ा लंबा जाएगा। उसके इंट्रो में आप एक छोटी पैराग्राफ के बाद एक फिर जो है नीचे एक बड़ी पैराग्राफ में आएंगे जिसमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो बॉडी में एनालिसिस मतलब उसका इंट्रो एक्सप्लेनेशन का कुछ पार्ट बॉडी में भी जाएगा एंड देन इसमें कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। कंक्लूजन में जब भी आपको लिखना है तो उसके फ्यूचर एप्लीकेशंस के बारे में जरूर लिखें, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में दैट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव बीन राइटिंग अबाउट द फ्यूचर एप्लीकेशंस ऑफ डू यू एग्री को। आप यू जस्ट लीव दिस वर्ड डू यू एग्री, यू स्टार्ट विद द टॉपिक।
Do you agree that Aurangzeb was responsible for the decline of the Mughal Empire? ठीक है. So you'll be writing with the, you'll start the answer with the Mughal decline. There, okay, this is the period when the Mughals declined, because you have to even discuss about the Mughal decline also. Okay, this is the period in which gradually the Mughals decline. And then you'll be writing there were several factors which were considered responsible. And first you'll be writing, since the question is about Aurangzeb, so you'll be writing कि Aurangzeb, in the initial historiography, Aurangzeb was primarily considered responsible for the Mughal decline. And these are few reasons because of what is considered. And then you'll be writing, actually there are some other ideas also which reject Aurangzeb as the responsible fellow for decline. And then you'll be, conclusion, then you'll be writing the other reasons for the decline. And then you'll be concluding कि any state, like if I would be there at your place, I would be concluding कि any state does not rise or does not fall because of one individual's contribution. So that's why Aurangzeb cannot be considered solely as responsible for the Mughal decline. Rather, some institutional reasons were there for the Mughal decline. So probably it seems कि the Jagirdari crisis or the agrarian crisis are more responsible reasons for the Mughal decline. हाँ, exactly same वैसे आंसर करेंगे, exactly वैसे आंसर करेंगे. राइट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. नहीं, मैंने डिक्लाइन तो कराया ना, मॉरियंस का कराया है. हाँ तो सारे पॉइंट्स बता तो दिए थे. हिस्टोरियोग्राफी नहीं दी थी, वो दे दूंगा. ठीक है यार, वो रिस्पॉन्सिबल, फिर से मैं वही कहूँगा, देयर इज वन पर्सन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर. और आपको क्या लगता है कि धम्मास पॉलिसी, इफ लाइक दिस आर्ग्यूमेंट इज बीइंग गिवन कि इफ दिस आर्ग्यूमेंट इज बीइंग गिवन कि धम्मा वाज द टूल विच वाज यूज्ड बाय अशोका in order to keep the empire consolidated, so how come the Dhamma could be responsible for it? ठीक है, मैंने ये बताया था कि अशोका कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से उसको लगा कि उसको लगे कि जो है मतलब we should feel like this policy was responsible. Did he dismantle his army? Like, you know, did he stop any sort of, did he dismantle his army, or let's say he stopped threatening someone, like he converted into monk? Nothing as such has happened. He continued ruling in the same way. The army was retained, the same army was maintained. So nothing as such happens because of what we can say कि Ashoka had started some sort of weakness in the kingdom. It was a tool as per the Romaelia Thapar to gain the legitimacy. Right? तो आप फिर बोलेंगे कि नहीं दूसरे रीजंस है उसके डिक्लाइन के लिए, दूसरी रीजंस थोड़े बता दो, काम खत्म हो गया. एक क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन आता है तो उसको फिर स्टार्ट कैसे करेंगे? When you see there are two questions, ठीक है, as I told you that you have to understand कि which one should come first, which one should go later. So just as like, you know, the question that we had been discussing, evaluating the theory of kingship in the Sultanate period, discuss the, like, you know, discuss about the approach of various rulers. So like that was the crux of the question. So the first thing will be, okay, so yeah, evaluating the theory of kingship of the Sultanate, discuss the deviation seen in the reign of the different sultans. इसका मतलब पहला पार्ट क्या है कि ब्रॉडली व्हाट वाज द आइडिया बीइंग फॉलोड इन द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फॉर थ्योरी ऑफ किंगशिप. सो वो वहाँ पे आपको बात करना है कि व्हाट आर द लाइक यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो व्यू अबाउट द थ्योरी ऑफ किंगशिप फॉर दिस पीरियड. दैट्स वन. एंड देन हाउ कम इट वाज चेंजिंग. So it was changing in this way कि what policy was being followed by Balban, the same policy is not being Iltutmish is same not being followed by the later on. और मैंने ये भी क्लास में बताया था कि दो अलग अलग रीजन्स हमें मिलते हैं. जब आप फ़क्र मुदब्बिर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो अप्रोच ऑफ स्टेट एकदम अलग है. जब आप बर्नी को पढ़ेंगे तो ही इज टॉकिंग अबाउट ए जस्ट स्टेट, एंड देन व्हेन यू रीड फ़क्र मुदब्बिर ही टॉक्स अबाउट ए वॉर स्टेट. ठीक है, वॉर स्टेट और जस्ट स्टेट की बात करता है. तो एकदम एक डेविएशन है. और उसका आप फिर कुछ रूलर्स का एग्जांपल देके बता दोगे कैसे वो जस्टिस पे. आपने पढ़ा ना, बलबन वाज एम्फेसाइजिंग अ लॉट ऑन जस्टिस. अलाउद्दीन खिलजी वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. ठीक है, क्यों इतने जस्टिस पे क्यों देते हैं वो लोग? कि वो थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है थोड़ा थोड़ा वो चेंज कर रहा है. ठीक है, तो यही लिखना है, कुछ ऐसा नया नहीं. इस क्वेश्चन में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं, इसमें क्वेश्चन में हमें उसके बारे में लिखना है जहाँ पे थ्योरी ऑफ किंगशिप कुछ बदल रही है. सो व्हेन इट कम्स टू, एक सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप जाहिर सी बात है इल्तुतमिश के, इट वाज द फेज ऑफ द फाउंडेशन, इट चेंज स्लाइटली विद द बलबन,
and then sudden changes could be noticed with Alauddin Khilji and then like Firoz Shah Tughlaq. क्या फ़र्क पड़ता है, सैयद है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहाँ एग्जिस्ट करते सैयद? आपने आज तक सैयद की हिस्ट्री पढ़ी है? कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो है ही नहीं। सैयद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोधीज को इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर फॉर दिस थ्योरी ऑफ किंगशिप। लोधीज के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, अफगान प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप जो वो फॉलो करते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा रूलर ओरिएंटेड होने की बजाय ये क्या होगा, जहाँ से चेंज है जहाँ पे, वो हमें लिखना है, दैट वी नीड टू राइट।